सोवरिया जीवना सोवरिया जीवना सोवरिया जीवना सोवरिया जीवना सोवरिया जीवना पीतन हो सीखे पीतन हो सीखे सोवरिया सोवरिया जीवना सोवरिया जीवना पीतन हो सीखे सोवरिया सोवरिया जीवना पीतन हो सीखे पीतन हो सीखे सोवरिया जीवना बुढ़ा हुआ शेख फरीद बुढ़ा हुआ शेख फरीद बुढ़ा हुआ शेख फरीद कमण लगी दे लग दे सोवरिया जीवना सोवरिया जीवना पीतन हो सीखे पीतन हो सीखे पीतन हो सीखे सोवरिया जीवना
फरीद कमण लगी दे लग दे लगी दे जी सोवरिया जी सोवरिया जीवना पीतन हो सीखे पीतन हो सीखे जी सोवरिया 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 जीवना पीतन हो सीखे। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਵਾਦਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5, 6, 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੱਜਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੈਨ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੀਕੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। फरीद जी 37 नंबर श्लोक, असी अज 41 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं, पर 37 नंबर श्लोक कहते हैं फरीदा ये विस गंदलां तरियां खंड लिवाड़, एक राहेंदे रह गए एक राधी गए उजाड़। जो कुछ भी नैगेटिव सुभाव वालियां आदतां होंदियां ने, मंदे ख्याल होंदे ने, उन्होंने फरीद जी विस दियां गंदलां कहते हैं, जहरीला कहते हैं। पर वो देखने च धरियां खंड लिवाड़, इस तरह लगता भी ये मिठियां ने। असी एक बारी फरीद जी का श्लोक पढ़िया सी, देख फरीदा ज्योतिया शक्कर हुई विस। आम तौर पर ये अर्थ समझाते हैं मेरी जिंदगी मिठी सी जहरीली हो गई। पर जदों असी ओदा चढ़दी कला वाला पक्ष देखांगे तो फरीद जी ट्रांसफॉर्मेशन की गल कर रहे हैं। फरीद जी कह रहे हैं देख फरीदा ज्योतिया शक्कर होई विस, मतलब विस मतलब जो मैं जहरीले पानी च बार बार लफज विस है, विस नूं विख्या कहते हैं, विश कहते हैं, जहर कहते हैं, पॉइजन कहते हैं, पॉइजनस थॉट्स कहते हैं, इंजूरियस सोचनी कहते हैं। वो मेरी ਉਹਦੇ कारण जिंदगी जिहड़ी पॉइजनस बन गई सी वो शक्कर हो गई है। असी ਉਹਨੂੰ उल्टा करके समझेंगे, शक्कर हो गई, शक्कर हुई विस, साई बाजो अपने वेदन कही है किस। सो असी अपने जीवन विच जो कुछ भी नैगेटिव्स करते हैं सानू बड़े पसंद आते हैं। सानू भैड़े बोल पसंद आते हैं, सानू उच्चे बोल पसंद आते हैं, सानू दूजियां नू अपने थल्ले डोमीनेट करके रखना पसंद आता है। राज करन दी बदबू होती है।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗੀ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਖਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਖਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ, ਉਹ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੁਭਾਅ ਵਰਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ, ਇੱਕ ਰਾਹੇਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਗਏ ਉਜਾੜ। ਇਹ ਵਿਸ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਬੋਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਸਿੰਚਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਮੈਂ ਸਿੰਚੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਇ ਕਰੋ ਬਸੋਲੇ, ਗੋਡੋ ਧਰਤੀ ਪਾਈ, ਜਿਉ ਗੋਡੋ ਤੋਂ ਤੁਮ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕੀਰਤਨਾ ਮਿਟਿਆ ਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਗਾਉਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ? ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੀਕੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੀਕੈਪ ਮੈਂ ਕੁਇਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 37, 38, 39, 40 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਰੀਕੈਪ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਬੁੱਢਾ ਹੁਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਸ਼ੂਚ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਤਾਨੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਬੁੱਢਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਬੁੱਢਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੈ, ਬੁੱਢਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ऐसे ऐसे सिर हिल रहा है, चला नहीं जा रहा, सोटी से चल रहे हैं, लोग पकड़ रहे हैं, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ? ਜੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ? ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਾਚਾਰਗੀ, ਮੁਥਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਏਜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਗਣੀ ਜੀਵਨ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੰਡ ਵਾਂਗੂ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਸਿਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਭੈੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੇ ਉਸ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਦੇ, ਲੋਕੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਸੁਨਾਨੀ थी ना उसको, तुम चुप करके खड़े रहे, इतने सब्र से खड़े रहे। पर जे अपने सब्र ते माणना ना होवे और विस गंदलां दा स्वाद पै जावे
तो इंसान कहेगा अगली बार आया ना फिर सुनाऊंगा मैं उसको, या मौका मिलते ही मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, चार के सामने उसकी पत लाऊंगा, क्योंकि विष गंदला मिठियां लगदियां ने। जबान तो भैड़े बोल बोलने, जबान तो निंदा करनी, कन्ना तो निंदा सुननी, अखां नाल हेटरेड लुक देनी, अपनी बॉडी लैंग्वेज दे नाल हेटरेड करना, ये सारा कुछ जो कुछ है विष गंदला वांगू मिठा लगदा है। नेगेटिव सुभाव। ਅਸੀਂ अपने बच्चे का ध्यान रखते रहते हैं, बच्चा किसी माड़ी संगत विच ना पै जाए, सानू पता ही नहीं लगता कदों वो विष गंदला वांगू बाहरों नैगेटिव स्पीक कर लिया है। वो होर बच्चों के नाल उन्हां दे घर जाता है और वो मम्मी पापा उन्होंने चॉकलेट लैके देंदे ने, या वो मम्मी पापा कहते हैं तुम रात को दूसरों के घर में सो सकते हो। साडा बच्चा आके कहता उसके पापा मम्मी तो मना नहीं करते हैं, उसकी मम्मी तो उसको चॉकलेट लेके देती है। बच्चे नूं नैगेटिव पसंद आ जाते हैं। निक्के तो निक्का बच्चा देखदियां देखदियां असी वड्डे भी, असी जदों नैगेटिव्स पसंद करते हाँ तो अज दे शब्द श्लोक मुताबक असी बुढ़े हो जाते हैं। साडी मत करके बुढ़ापा आ जाता है। रिजल्ट की निकलिया, एक राधी गए उजाड़, एक राहिंदे रह गए, एक राधी गए उजाड़। सो वो की करते ने, वो इस समाज विच चंगे काम चंगी व्यवस्था नूं उजाड़ते ने। किसी सियाणे ने रेड लाइट बनाई सी, पर जिहड़े उजाड़न वाले होंदे ने वो रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं। किसी सियाणे ने कहा सी कि शराब ना पियो, पर वो जिहड़े कुदरत दे सेब और अंगूर लगे ने वो उन्हां दी शराब पीना ज़्यादा पसंद करेगा। वो चंगे भले घर नूं चंगे भले समाज नूं उजाड़नगे, वो एक दूजे नूं इंस्पायर करनगे, इंस्टीगेट करनगे कि भैड़ कर लो कोई गल नहीं। सो होरनां लई कंडे बीजते हन। भलाई बीजांगे साडे जीवन विच भलाई सानू मिलेगी, वर्सिस जे पॉइजन कंडे बीजांगे असी समाज खराब कर लांगे। हो सकता है वो कंडे मैनू चुभण या ना चुभण, पर मेरे बच्चों वास्ते मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन वास्ते वो कंडे नुकसान कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो कुछ असी समाज में देंदे हां वो सानू वापस फेस करना पै जाता। उन्होंने कहते हैं जिहा बीजै सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत। किसी दी बगिया नूं उजाड़ना, एक राधी गए उजाड़, ये असी समझ रहे हाँ सुभाव नैगेटिव किवें पसंद करता है, मिठा समझ के चंगा समझता है। दिनों दिन साडा नौजवान शराब पी रहा है। पहला मैं सुनिया सी कॉलेज विच जाके पींदा सी, हुण मैनूं सुनन नूं मिलदा है कि वो 10वीं क्लास तो ही स्कूल पीना शुरू कर देंगे। एक दो स्कूल के चेयरमैन ने सानू क्या साडे ते सैमीनार करो, साडे 8वीं क्लास के बच्चे अपनी बैग के अंदर शराब की बोतल लैके आते हैं और बाथरूम में पीते हैं। ये दिनों दिन साडा समाज क्यों खराब हो जा रहा है? क्योंकि तुसी असी सारे रल के ये हिस्सा नहीं पा रहे हैं, असी इसनूं उजाड़न वाल लगे हुए हैं। फरीद जी कहते हैं इस तो अगला श्लोक, फरीदा चार गवाया हंड कै, चार गवाया सम लेखा रब ने देसिया, तू आहो केड़े कम। जदों असी दिन रात खाना पीना हसना सोना वाला जीवन बिताते हैं तो उहदे च हुंदा मैं कमाने ने, कमाने वास्ते पहला मैं पढ़ना है। असी सारे माँ प्यो का जोर होंदा बच्चा पढ़ जाए, बच्चा पढ़ के उस बाद कमाइयां करे। असी मिस इंटरप्रिटेशन की है कि गुरमत का कॉन्सैप्ट है जी किरत करो नाम जपो वंड छको। एक कॉन्सैप्ट तो अच्छा है पर असी दे अर्थ अपनी मनोत नाल बनाए हुए ने। असी अर्थ बनाए हुए ने किरत करो मतलब नौकरी पे जाओ पैसे कमा के लाओ, असी इहदे नाल किरत रखिया है। पर जदों गुरमत नूं पढ़ांगे तो किरत करो का मतलब होंदा है चंगे गुणा की किरत करिया कर, चंगे सुभाव नूं कमाया कर, नो मैटर वट। कई बारी की होंदा है दो सज्जन आपस में गल कर रहे होंदे ने,
वो गल मेरे अगेंस्ट कर रहे होंगे ने, पर जे मैं अचानक पिछा होगा होर सुनाओ जी, ओ वीर जी, इस तरह शो करनगे कि जिस तरह असीं नैगेटिव गल नहीं सी कर रहे। सो एक मनु कहता है वो वीर जी इत्थे आए दिन 2 महीने बाद आ जाते हैं, वीर जी तो वेले ने, असीं ते अपना काम काज करना है, असीं ते अपना टब्बर पालना है। हुण की कीता, लेखा पैना शुरू हो गया, नेगेटिव लेखा लिखना शुरू हो गया। चंगे भले सीधे राह ते टुरन वाले नूं भी टेढ़े राह ते टुरन वास्ते असीं निंदा शुरू की। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ नहीं गल चल रही भी मेरी निंदा क्यों की, गल ये चल रही है कि असीं एक सीधे राह ते टुरन वाले नूं किस तरह तोड़दे हां। ਇਹ तोड़ना, सीधे राह ते टुरना पाना बुढ़ापे की निशानी है। अज के श्लोक फरीद जी सानू समझाते ने, रिजल्ट की निकलेगा, 4 गवाया हंड के 4 गवाया सम। असी सिर्फ पढ़न नहीं आया, असी सिर्फ कमाण वास्ते नहीं आया। यह बिल्कुल भारी भुलेखा है। जे सिर्फ कमाण आए हाँ तो साडियां मावां भैणां धीआं वोटियां जिहड़ियां घरां विच कुकिंग करदियां ने, उन्होंने इस काम दे कोई पैसे नहीं मिलते, वो फिर किरत नहीं कर रही। जे किरत करन दा मतलब बाहर जाके काम करके पैसे कमाना ही होता। सो चंगे गुणा दी किरत करनी है। पर फरीद जी पुछते ने, 4 गवाया हंड के 4 गवाया सम, तो बस खादा पीता अपने वास्ते जीविया। देखो ना, साडा बच्चा पहला जो स्कूलों में होंदा सी, कहंदे इहदा प्रोजेक्ट है, इहदा काम है, इहदी पढ़ाई है, इहदे एग्जाम आ गए हैं। असी चंगे गुणा की किरत कमाण वास्ते उसनूं सच वाले पासे ले जांदे ही नहीं। लेकिन जे साडे परिवारां विच किसी दा विआह शादी होवे, साडे परिवारां च किसी दी डेथ हो जावे, तो असीं बच्चे नूं कहंदे आ कोई बात नहीं ना, ये एग्जाम हो जाएगा, मम्मी आके रात को करा देगी, जाना जरूरी बनता है। बर्थडे तो असीं लै जांगे, डेथ सैरेमनी तो असीं लै जांगे, पर असीं चंगे काम वास्ते उन्होंने इंस्पायर नहीं किया। आस्ता आस्ता उन्हें 10वीं दे 12वीं दे एग्जाम, अभी तो उसके बोर्ड के एग्जाम है जी, सच सुनने का टाइम नहीं है। उस तो बाद कॉलेज चला गया, कॉलेज बिगड़ गया, कॉलेज के बिगड़न तो बाद वो जॉब करन लग पिया, जॉब करता है, कॉलेज करता है, कहता मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा काम है, मेरे को टाइम बाउंड जॉब है, मेरे को जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। अरे कब्र करके तुम फरारी कार रहे लोगे, ज्यादा से ज्यादा करके तुसी लखा करोड़ा कमा लोगे, ज्यादा से ज्यादा करके तुम्हारी बड़ी सारी दुनिया में प्रॉपर्टीज होंगी, ज्यादा से ज्यादा करके तुम पूरा वर्ल्ड घूम लोगे, ज्यादा से ज्यादा। हो सकता है आस्ता आस्ता 6 महीने या साल बाद रॉकेट की टिकट मिलनी शुरू हो जाए, तुम चांद पे भी जा सकते हो, मंगल पे भी जा सकते हो, तुम चले जाया करोगे। पर चंगा गुण की कमाया। साडा जिहड़ा सैमीनार सी ना 15 अगस्त का, उहदे विच असीं यही समझ रहे सी, घर विच मां प्यो रुलदे क्यों हन? मां प्यो इस करके रुलदे हन क्योंकि बच्चियां ने चंगे गुणा की किरत नहीं सीखी। जिन्होंने चंगे गुणा की किरत सीखी या जिहड़े सीख रहे ने, असी लिविंग ट्रेजरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सीखण ते अपने माता पिता की सेवा करन। पर जिहड़े नहीं सीखते ने, उन्हां दी की निशानी होंदी है? वो बेचारे पैड़े भी नहीं हन, वो कोई क्रोध भी नहीं कर रहे ने, वो कोई बेईमानी भी नहीं कर रहे ने, पर वो काम पे चले जाते हैं। जिहड़े पति पत्नी काम पे चले जाते हैं, उनके माता पिता जो बुढ़ा बुढ़ी घर पे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? उसके बारे में बात चल रही थी सेमिनार पे कि असी कुछ ऐसा करिए भाई, पिछों साडी संस्था दे कोई मैंबर उन्हों का हाल ही पुछा, उन्होंने वास्ते खिचड़ी बना, उन्होंने वास्ते दलिया बना देन, उन्होंने दे पैर कुटन। तुम्हारे दोनों बच्चे सारी उम्र पढ़ते रहे, बहुत ज़्यादा पढ़ गए हैं और यहाँ से अमेरिका या कनाडा लंदन चले गए हैं, बेंगलोर चले गए हैं, या दिल्ली में ही तुम रहते हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे सुबह 8 बजे चले जाते हैं, रात को 8 बजे आ जाते हैं। ये मकान की किश्त भी तो देनी है ना, कारों की किश्त भी देनी है, बिजली का बिल भी देना है, तो वो तो खर्चे बेचारे पूरे करने जाएंगे ना। पर तुम्हारा ध्यान कौन रखे? मैं आया हूँ, मेरी संस्था की तरफ से हम आए आपके पास। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ओफो। ਭਾਵੇਂ ओफो 4 दीवारा वाला होवे, ਭਾਵੇਂ ओफो टुरदी फिरदिया संस्था होवे, कि साडे घरां विच कौन ध्यान रखेगा उन्हां दा? कौन उन्हां नूं पानी दा गिलास पुछेगा?
फरीद जी कहते ने चार गवाया हंड के चार गवाया सम, तू समाज विच की कीता? लेखा रब मंगेसिया आहो केरे कम, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर हेल्पिंग टू दिस समाज, व्हाट यू आर क्रिएटिंग? You are creating capitalism. You are promoting capitalism. You are promoting fashionism. You are promoting शराबिज्म. You are promoting मैच ते बैट किमें लगाईदा है. You are promoting कि रात को 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक कपल किट्टी में कैसे जीते हैं. ए प्रमोट कर रहे हो, हुक्का प्रमोट कर रहे हो, डांस प्रमोट कर रहे हो. सारा समाज फरीद जी कहते लेखा रब मंगेसिया आहो केड़े कम, तो तू नेगेटिव लेखे लिखने शुरू कर दिते विस गंदलों के कारण, क्योंकि तेनू नेगेटिव चो मिठा चंगा लगता है. रिजल्ट लेखा पल पल दा जीवन अजाई गवाई जांदे. मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया, लेखा देना तेरे सिर रहा, तेनू काम क्रोध मोहंकार काबू करने नहीं आते. जिन्होंने अंदर की दरगाह नहीं ना समझ आती है, उन्होंने काम क्रोधों को काबू करने नहीं आते. मन जीत जगजीत करना नहीं आता. उन्होंने चंगियाइयां बुराइयां वाचा धर्म दूर. कल राती साडा टैगोर गार्डन प्रोग्राम सी, असीं उहदे विच सुनिया समझिया कि वो दीवान केड़ा होंदा है. दुनिया मरण तो बाद कोई कचहरी समझती है. गुरु साहब समझा रहे ने मरण तो बाद कोई कचहरी नहीं होती, कोई दीवान नहीं होता, जींदे जी इत्थे होंदा है. सो ऐसा दीवान वसिया भगतां के हृदय अंदर होंदा है. पर असी सारे ही सोच समझ के बैठे हैं मरने के बाद होता है. इसी करके साडे जिहड़े डेथ के प्रोग्राम होंदे ने उन्हां विच अरदास होंदी है, ए विछड़े होए जीव नूं मरण तो बाद चरनां विच निवास बख्शना, इन्हां दा लेखा जोखा करके माफ कर देना, क्योंकि असी मरण तो बाद स्वर्ग नरक समझिया होया है. मरण तो बाद एक दरगाह समझी हुई है जिहदे अंदर लेखा जोखा होएगा. अकॉर्डिंग टू दैट पाप पुण्य दी विचार होएगी, अकॉर्डिंग टू दैट नरक या स्वर्ग मिलेगा, अकॉर्डिंग टू दैट नए मम्मी पापा मिलेंगे, नहीं तो तुमको जानवर कुत्ता बिल्ली बना दिया जाएगा. यही थ्योरी असी सुनी हुई है ना. गुरु साहब कह रहे नहीं है, नहीं है, जींदे जीत. मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया, लेखा देना तेरे सिर रहा, लेखा है. तेनू अपने मम्मी पापा नाल नम्रता नाल गल करनी नहीं आती. जरा जी वो गलती कर जान तो गुस्सा करता है. व्हाट्सएप पे पढ़िया ना, मां कह रही है जदों असी बुढ़े हो जाएंगे ना सानू सुनाई कट देगा, गुस्सा ना करना. जदों असी बुढ़े हो जाएंगे ना सानू चबाना नहीं आएगा, साडे वास्ते दोबारा पोला खाना बना देना. जदों असी बुढ़े हो जाएंगे ना असी कुछ बोलांगे तो समझ नहीं आएगा, साडा 2-2 बारी कान धर के सुनने की कोशिश करना. जदों असी बुढ़े हो जाएंगे ना असी टुर नहीं पावांगे ना, साडी लाठी बन जाना. पर साडे कोल ते टाइम नहीं है. क्यों? हमने मार्केट में प्रमोट किया ये बच्चा है, ये पढ़ रहा है, इसके 96% है और ये पढ़ गया, ये बड़ा होनहार हो गया, अब ये बिजनेस करता है, अब ये लाखों करोड़ों कमाता है. अब देखो लाखों करोड़ों कमाने जाता है. ये सब कुछ होएगा पर घर माँ प्यो रुलनगे. इस करके बड़े अफसोस दे नाल उन्हां माँ प्यो दा ध्यान रखण वाले सब्जेक्ट नूं असी रखिया सी ओफो खोलने पैणगे सानू. ओफो बड़े अफसोस से जो मम्मी पापा रुल रहे हैं उनको, जो माँ सड़क पे अकेली खड़ी है दवाई लेने जाने के लिए उनको, जिनके बच्चे काम पे चले गए उनको, जिनके बच्चे परदेश चले गए उनको. सो लेखा सिर ते रहिंदा है. जिन्हां नूं लेखे पै जांदे ने, लेखा रब जी नहीं पांदे. लेखा अपने मन के ख्यालों के कारण पैंदा है. जदों असी नैगेटिव्स की प्रैक्टिस करन लग पैंदे हाँ तो अपने मन के ख्यालों के कारण लेखा पैंदा है. जदों लेखा पैंदा है तो मनुख की करता है, बदले लैण की भावना, वैर विरोध, निंदा करता है, चुगली करता है. फिर बार बार मैं कहूँगा शराब पींदा है, शराबियां नाल बहंदा है, क्रोध करता है. इस किस्म के यह सारे लेखे पैंदे ने. असीं उन्हें सवेरे एक जगह प्रोग्राम किया, असीं उत्थे पढ़िया औखी कड़ी ना देखण देई
ਦੇਈ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੇਈ अपना बिरध संभाले। मेरा रब मैनू औखी घड़ी च पैण नहीं दिंदा। दूजा मेरी निंदा करता है और मैं बर्दाश्त कर लेता। मेरे रब ने मैनू बर्दाश्त टॉलरेंस दी। दूजा मेरे बारे भैड़ करता है, भैड़ बोलता है, भैड़ समाज च फैलांदा है, मैं बर्दाश्त कर सकता। पर मैं उल्टा उसकी निंदा ना करा, मैं उल्टा उसदे बारे गंद ना फैलावां, क्योंकि उहदे नाल एजिंग होंदी है। एजिंग झुरड़ियां चिट्टे वालों ही कहते, मेरी आत्मा की एजिंग हो जाती है, मेरा मन बुढ़ा होना शुरू हो जाता है। जिसनों कहते गुरमुख बुढ़े कदे नहीं, मैं उस पौड़ी तो डिग पैना वा। सो फरीद जी कहते ने माड़े लेखे लिखो। तो इस तो बाद अगला श्लोक आया, फरीदा दर दरवाजे जाए कै, 39 नंबर श्लोक। दर दरवाजे जाए कै, क्यों डिठो कड़ियाल, ए निर्दोषा मारिया हम दोषा का क्या हाल। फरीद जी दर दरवाजे जाए के पुराने जमाने विचकार पूरे गांव का एक घंटा घर होंदा सी, उत्थे घड़ी लगी होंदी सी और उत्थे देखते सी घंटा वजदा सी। फरीद जी कहते ने मैं अपने पिंड दे मेन गेट ते जाके दर दरवाजे ते जाके देखा कि उत्थे एक बारला प्रतीक है, घंटा वजदा है। दर दरवाजे जाए के क्यों डिठो कड़ियाल, मैं देख लिया कड़ियाल नूं, ये निर्दोषा मारी है हम दोषा का क्या हाल। उस जिहदे उत्ते सट वजदी है, टन वजदा बार बार, उहदा ते कसूर भी कोई नहीं है। वो तो सानू आगाह करवा रहा है कि देखो घंटा बीत गया, देखो पहर बीत गया, देखो घड़ी बीत गई, आवरली घंटा वजदा है। पर फरीद जी कह रहे हैं उसने दोष ही कोई नहीं किया, तां भी टन टन उहदी वजदी है, उन्होंने मार पैंदी है। हम दोषा का क्या हाल, तू जिहड़े नैगेटिव के नाल जींदा है, ਇਹਦਾ ही लेखा जोखा मरण तो बाद नहीं होंदा, ਇਹਦਾ लोखा जोखा पल पल होंदा है। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ लेखा जोखा होना शुरू हो जाता है तो रिजल्ट की निकलता है, असी रब जी तो दूर हो जाते हैं। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਸੈਡਨੈਸ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਦ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਦੋਸ਼ਾ ਮਾਰੀਆ ਹਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾ ਕੇ ਹਾਲ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ, ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ। दूजे तो गलत होंदे ही होंगे, होंदे ही हैं। लोग अवगुणा की बनना, गंठड़ी गुणना में आ जा कोई, लोकां ते अंदर ते अवगुण है ही है ने। तो जिदे अंदर अवगुण तू लभ सकता, क्योंकि भुलन अंदर सबको भुल गुरु करता। कोई भी धरती ते परफेक्ट नहीं है, तेनू लोकां च अवगुण मिल जाएंगे पर तू काणा हो जाएगा, अपना अवगुण लभ नहीं पाएगा। अवरन हस्त आप हैं काणे, तिनको देख कबीर लजाने लजी। कबीर जी कहते लज्जा आती है उन्होंने वेख के जिहड़े अपने अवगुण देखना छोड़ देते हैं। अपने अवगुण ना देखिए ना तो फरीद जी कहते हैं, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख ना देख। इसका मतलब जो अवगुण मैं नहीं देखांगा तो मैं काले लेख भी लिखांगा। असी बार बार उसकी गल करते हैं, काले लेख निंदा है, काले लेख निंदा करना है, काले लेख निंदा सुनना है, काले लेख भैड़े बोल बोलना है, काले लेख चंगे भले चलदियां कम्मां नूं तोड़ना है, डिस्ट्रक्शन है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ भी हो जाते हैं और ਅਸੀਂ सैड भी हो जाते हैं और ਅਸੀਂ डिप्रैस्ड भी हो जाते हैं। ਹੁਣ फरीद जी कहते हैं जो माड़े ख्याल सुभाल लेखे नाल जीवो वो दिन दिन रात दुखी होते हैं। 40 नंबर श्लोक विच कहते हैं, घड़िए घड़िए मारिए पहरी लह सजाए, सो हेड़ा कड़ियाल जो दुखी रहन विहाए। जो पल पल मंदे ख्यालों की मार पैंदी है ना, जिस तरह घड़ी के उत्ते घड़ियाल टन टन बजदा है, इस तरह मंदे ख्याल सानू बार बार बॉदर करते हैं। सो असी जे माड़े ख्यालों के सुभाल लेखे नाल जींदे हाँ तो दिन रात असी दुखी रहते हाँ। इस तो बाद साडा अज का श्लोक आया। अज के श्लोक नूं पढ़न तो पहला असी इत्थे तक हुण तक समझेगा। याहूं जुगत बिहाने, याहूं जुगत बिहाने,
बिहाने कई जन्म, बिहाने कई जन्म, नानक राख ले ओ आपन कर कर्म, नानक राख ले ओ आपन कर कर्म, जो बैराई तास्यों प्रीत संग सहाई, सुआवे न चीत, जो बैराई तास्यों प्रीत, बलुआ के ग्रह पीतर बसे, अनद के माया रंग रस, अनद के माया रंग रस, दिड़कार माने मन है प्रीति, काल न आवे मूड़े, बैर विरोध काम, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ क्रोध, झूठ विकार महालोभ क्रोध, याहू जुगत बिहाने, बिहाने कई जन्म, नानक राख ले ओ आपन कर कर्म। मैं किस तरह बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह, अपनी कीती गल मैनू चंगी लगती है, दूसरिया दी भैड़ी लगती है, अपनी गलत भी राइट लगती है, दूसरिया दी राइट भी रॉन्ग लगती है, इस तरीके की सारी सोचनी वाले जन्म धारे हुए ने। मैं बैर करन दा एक जन्म धारा है, बैर विरोध विरोध करना है, अपोजिशन करनी है, बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह, याहू इस तरीके से, याहू जुगत इस मेथड से बिहाने कई जन्म। ये पिछले जन्म की गल नहीं चल रही, मैं इस जन्म ऐसे कितने रूप धारदा हाँ तो मेरे जीवन जाया जा रहा है। गुरु पातशाह कहते नानक जी नानक राख लियो आपन कर कर्म। सो ये समझाते हुए अगे कहते ने कि तू अपना इंट्रोस्पेक्शन कर और देख, जो माड़े ख्याल सुभाल लेखे ना जींदा है वो दिन रात तू दुखी रहता है। जे एमलैस जीवन जियो, जीवन कोई एम ही नहीं है, काम करन बिजनेस करन नौकरी करन एम नहीं कहते। कोई इंसान कहे मैं चंगा डॉक्टर बनना है, बड़ी अच्छी गल है, पर जो डॉक्टर पैसे कमाने वास्ते बनना है तो एम नहीं चंगा। पर डॉक्टर बनना है, मैं ठीक, मैं ना अगर पढ़ गया, सर्जरी आ गई या डायग्नोस करना आ गया, मैं लोगों की हेल्प किया करूंगा, एम है। मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मेरी साइंस की खोज से लोग सुखी हो जाएंगे, एम है। मैं ऐसे ऐसे घर बनाना सीखूंगा, इंजीनियर बन गया तो कम से कम झुग्गी झोपड़ी वाले के मकान बन सके, ऐसी मैं कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट निकालूंगा, एनू एम कहते हैं। समाज कुछ भला करन दी लोचा, बर्निंग डिजायर, एम। जे कोई कुड़ी कुकरी क्लासेस सीखती है वो इस वास्ते नहीं सीखती कि मेरे घर जब मेहमान आएंगे हम एक नई डिश बना देंगे, नहीं। जो कुकरी क्लास सीखती है या अपनी माँ को सीखती है या अपनी सस को सीखती है, मैं घर वालों प्यार नाल रोज स्वादला भोजन बना के सिखा,
ताकि उन्होंने बाहरों ना मंगाना। ए एम है। सस कहती है मैं अपने पुत्र नूं चंगा तराश रही हाँ ताकि यदि जड़ी वोटी बन के आएगी इस घर में भी सुखी रहेगी और वो भी सुखी रहेगी। यह चंगा एम है। पर असी तो एमलैस जीवन जी रहे हैं ना। पिछला लिंक किया 4 गवाए हट के 4 गवाए साम लेखा रम गए सी आहो केड़ा काम। ए लेखा अपने आप को पूछना पड़ेगा मैं किस काम आया। कि मैं एमलैस जीवन जीता हाँ, कि मैं एमलैस जीवन जी के दुखी भी रहता हाँ, कि मैनू मंदे ख्याल आते ने, कि मैं मंदे लेखे दिखता रहता, कि बदला लैन की भावना मेरे अंदर है, कि निंदा करने की भावना मेरे अंदर है, कि चंगे भले दे कीते दा थैंकलैस हाँ मैं ग्रैटिट्यूड विच नहीं रहिंदा पर मैं चंगे भले कीते नूं उजाड़दा हाँ। यू कैन लिव एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। इन्हां नैगेटिव्स दे नाल तू जिन्ना मर्जी जी सकदा है इस आयरनी दे नाल। असी अज विचारना है कि सानू पुछ रहे हैं बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी दे जे 100 वरियां जीवना ईतन हो सीखे। सो असी अज दा श्लोक बुढ़े किवें होंदे आ अंदरों के बाहरों। जे शरीरक तौर पर बुढ़े होंदे आ वो लॉज ऑफ नेचर है, उसनों कोई स्टॉप नहीं कर सकता। भावें वो अपने डेंचर लगवा सकता है सौखा खाण वास्ते, लेकिन अपने वाल काले करता है वो दुनिया नूं दिखाण वास्ते। इस तरह जो कुछ मर्जी कोई कुछ करे असी किसी नूं कुछ मना नहीं कर सकते हैं। असी बुढ़े किस तरह होंदे आ दोष ना दिओ राय नूं मत चलै जे बुढ़ा होवे। असी श्लोक 12 ते वधीक दा ये वाला पहला श्लोक समझा। गुरु साहब ये पिछले श्लोक कहते ने रज ना कोई जीविया पहुँच ना चलिया कोई। तुसी नैगेटिव्स नाल जितना मर्जी जी लो कदे रज नहीं होएगा। उसनूं तृष्णालु जीवन कहते हैं। और जीने की लालसा और मल्टीविटामिन्स खाने की आदत और अपना शरीर बचाने की आदत, लेकिन ये सब कुछ करते करते रज नहीं हो रहा। जिसनों रज नहीं हो रहा वो वंड छकना नहीं करेगा, वो शेयरिंग नहीं करेगा, वो अपने घर तक महदूद रहेगा, अपने टब्बरां तक महदूद रहेगा, अपने बिजनेस नौकरी तक महदूद रहेगा, अपने कपड़े पाण तक महदूद रहेगा। तुसी अंदाजा लगाओ। मैं एक हाइपोथेसिस तैयार करदा, शायद दुनिया में कोई इंज करता होए तो मनु माफ कर दे, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बना रहा। फर्ज करो एक घर विच एक बुढ़ी माँ है या बुढ़ा पिता है या बुढ़ा बुढ़ी दोनों रहते हैं। उन्हों का बेटा है, बेटा काम ते जाता है, बहू रानी भी है। बहू रानी नूं किसी ने कहता अपना भी ध्यान रखना चाहिए, हर टाइम दूसरों की सेवा नहीं करते रहना चाहिए। हुण बहू रानी की करती है? बहू रानी कहती है सुबह तो मैं अपनी नींदर पूरी करूंगी क्योंकि रात को मेरे को देर हो जाती है। लो जी हुणे आराम नाल उठी है। सस नूं सौहरे नूं चाह पानी भी चाहिए, पति नूं भी चाहिए, सारे घर का सिस्टम बनाना है, पर यह आराम नाल उठी है। अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। फिर कहती है भाई सैर भी जाना चाहिए, अभी तो मैं सैर जा रही हूँ। सैर तो बाद आई है, कहती है थोड़ा योगा भी करना चाहिए, मेरे भी तो जोड़ों में दर्द हो रहा है, मेरे को भी तो अपना ध्यान रखना है, योगा भी अपनी बॉडी का भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। उन्हें वंड छकना नहीं आ रहा, हाउ टू मैनेज योर टाइम कि दूजिया वास्ते मैं दसका। सारे सैल्फिशनेस छा गई, कूड़ फिर प्रधान हो गया। ता तक उन्होंने बेटा कम ते जांदा जांदा बुढ़ा बुढ़ी का नाश्ता बना गया। हुण बुढ़ा बुढ़ी ने खाना है, वो खा रहे ने, ये अपना योगा कर रही है और योगा करने तो बाद कहती है तुसी खा रहे हो, ऐ तो मैं नहीं खावांगी, मैं अपना वखरा बनावांगी, मैं तो बड़ी हेल्थ कॉन्शियस हाँ। हुण अपनी हेल्थ कॉन्शियसनैस के हिसाब के नाल 10-11 बजे तक अपनी किस्म का खाना बना रही है, अपनी गेम है। मैं एक हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल बनाया है। दुनिया का कोई मर्द, है दुनिया का कोई स्त्री, है दुनिया का कोई मुंडा, है दुनिया का कोई कुड़ी, कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग, सारे जो अपने शरीर तक महदूद हो जाते हैं ना, तो वो सैल्फिश हो जाते हैं। हुण उन्हां दे सैल्फिश हो जाण की गल चल रही है। रज ना कोई जीविया पहुँच ना चलिया कोई, ज्ञानी जीव है सदा सदा, सुरती ही पत होए। साडी जम पत लुट लेंदे ने जदों असीं सैल्फिश हो जाते हैं। जे सानू ये वाला ज्ञान हो जाए कि मेरे को कैसे सबके साथ मिल के चलना है, मैं पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस फैमिली हूँ और मेरे को दूसरों की भी हेल्प करनी है,
बस सारा घर सुखी हो जाएगा। सर्फ है सदा सदा एवें गई विहाई, वो कंजूस हो जाता है और अपना जीवन जाया करता है। नानक किस नूं आखिए बिन पुछिया ही लै जाए। अल्टीमेटली शरीरक मौत भी हो जाती है, पर पल पल उन्होंने अवगुणा दे नाल उहदी मौत होती रहती है। दोष ना दियो राय नो, भगवान के ऊपर दोष लगाने की जरूरत नहीं है कि भगवान ऐसे कराता है। कईयां ने राह फाड़ लिया, वो कहते हैं जो कुछ करता है भगवान कराता है। वाह जी वाह, भगवान ने तो कभी नहीं कहा कि हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दो, हिंदू को सिखों से लड़ा दो, सिखों को उसे करा दो, मेजॉरिटी मिनॉरिटी के झगड़े करा दो। भगवान तो कोई नहीं कहता। भगवान तो अवल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजे कौन पले को बंदे। बाणी कह रही है सब है काट राम बोले, राम बिना को बोले रे सिख। भगवान तो नहीं बुरा कहलाता। कोई मम्मी पापा अपने बच्चों को मिसबिहेव नहीं करते हैं, सारे प्यार करते हैं। अगर दुनियावी मम्मी पापा अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अगर उन्होंने दो बच्चे होता दोनों कहते तुसी दोनों मेरिया अखा बराबर हो, मैं वितकरा नहीं करती, मां जी कहती है ना। लेकिन जे दुनियावी मम्मी पापा वितकरा नहीं करते तो रब किवें वितकरा कर सकता है? रब कोई तमाशबीन है, मैजिशियन है, जादूगर है, क्रूअल मैन है कि भाई दोनों को लड़ा देता है और फिर तमाशा देखता है। सारे दे कसूरवार असियां, दोष ना दियो राय नूं, मत चले जब बुढ़ा होवे। जदों पैड़ी मत चलदी है ना इत्थे तां असी बुढ़े हो जाते हैं। फरीद जी कह रहे ने, बुढ़ा हुआ शेख फरीद। गुरु साहब श्लोक 12 ते वधीक दा 32 नंबर श्लोक विच कह रहे ने, गल्लां करे कनेरियां, गल्लां बहुत करदा है। गल्लां करे कनेरियां, गल्लां नाल नहीं किसी नूं जितन दिंदा, थुक्कां नाल बड़े पकांदा है। पर तू दूजे दा भला की कीता है? गल्लां करे कनेरियां तां अन्ने पवना खाती टोवे, तां वो दिन रात नैगेटिव्स दे खड्डे विच डिगदा रहिंदा है। दिन रात नैगेटिव थॉट्स दे खड्डे च डिगना, ढेर गल्लां चतराइयां सियाणपां दियां गल्लां करना, यह निशानी है बुढ़ा होण दी। हुण मैं भावें 16 साल का नौजवान होवां, लेकिन जे यह अवगुण मेरे अंदर है, गुरबाणी कहती है बुढ़ा हो गया। गुरबाणी कहती है बुढ़ा हुआ शेख फरीद। हुण गुरबाणी कहती है सिर कंप्यो पग डग मगै। शरीर दे इस कंबन नू बुढ़ापा नहीं कह रहे ने, जो जब वो तू यहां से कंफ्यूज हो जाता है, सिर कंप्यो, ठीक समझ नहीं पाता है कि मेरे को क्या करना है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, उसकी विवेक बुद्धि नहीं है, डिवाइन कॉमन इंटेलेक्ट नहीं है। गुरबाणी डिवाइन कॉमन इंटेलेक्ट देती है। धर्म का काम है लोग ये कॉमन इंटेलेक्ट समझ सकें कि हम धरती पर आए क्यों हैं। हारमोनी के लिए आए हैं, डिसहारमोनी के लिए नहीं आए, एक दूसरे को तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, जोड़ने के लिए आए हैं, प्यार मारने आए हैं, प्यार देने आए हैं। ए वाला ना कॉमन इंटेलेक्ट, डिवाइन कॉमन इंटेलेक्ट की विवेक बुद्धि गुरबाणी सिखाती है। तो गुरु पातशाह कहते ने सिर कंप्यो मैला नोवा। सिर कंप्यो जेड़े जेड़े मैं तुहानू कोट करता जा रहा, भावें फरीद जी के श्लोक और भावें जपजी साहब की कोई गल या मैला नोवा के श्लोक, है सारिया दी पुस्तकां और सीडीज और पेन ड्राइव्स तुहाडे वास्ते बाहर पईयां ने जिहड़ियां पिछले 80-23 सालों में जिथे डिस्कस करते हैं। सिर कंप्यो पग डग मगै, नैन जोत ते हीन, सच देखना नहीं आता, सच को विजुलाइज नहीं कर सकता, सच का नजरिया नहीं है और सारे नेगेटिव्स पकड़ लिए, इथों अन्ना हो गया। यह आईसाइट 2020 है। कार चलानी आती है, लाइसेंस भी है, पर मैं चलाता तेज हूं। मेरी कार के नीचे फुटपाथ पे भी लोग मर जाते हैं और सड़क पे जाते पेडेस्ट्रियल को भी मैं रास्ता नहीं देता, और रैश भी चलाता हूं और शराब पी के भी चलाता हूं। जितने मेरे साथ बैठे हैं वो भी डरते हैं, पर मैं नहीं डर हो गया। मनु वो गल याद आ गई, वो पत्नी पूछती है तुसी कार इतनी तेज चलाते हो, इतनी तेज चलाते हो, जो मोड़ आंदा उत्थे भी इन्नी तेज चलाते हो, तुहानू डर नहीं लगता? कहता तू मेरी तरह आंखें बंद कर लिया कर। मतलब हर अवगुण भी मैं निडर होके करदा, नैन जोते ही कहो नानक के विद पई तो ना हर रसलीन। इस तरीके से तो बुढ़ा हो गया है। शरीरक बुढ़े दी गल नहीं चल रही, तेरा सोचनी दा ढंग बुढ़ा हो गया है।
यू कैन नॉट थिंक कि सच वास्ते किवें बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया। देखिया तुसी साडा नौजवान 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक सौंदा है और रातां नूं जागदा है। जो ही हनेरा पैंदा है घरों निकल जाता है। साडा नौजवान जिहड़े नवे कपल ने वो निकल जाते हैं रात को 11 बजे कहाँ जा रहे हैं। हमने बच्चों को मेड को कह दिया, बच्चों के साथ सुला दिया, अब हम किट्टी पार्टी जा रहे हैं, कपल किट्टी में जा रहे हैं। जो बुजुर्ग सवेरे अखा मलते 5 बजे उठते ने देखते हैं मम्मी पापा हुणे साडे नौजवान मुंडा कुड़ी नूं पुत्तर आ रहे ने, आ कित्थों रहे ने हुक्का पी के, आ कित्थों रहे ने शराबा पी के, आ कित्थों रहे ने वोटी एक्सचेंज करके, जुए विच वोटियां हार रहे हैं। वो 1000 साल पुराना जमाना आ गया, द्रौपदी हारनी है। केड़ी साडी सोच नहीं बनी। इनू बुढ़ा कहते हैं, इनू बुढ़ापा कहते हैं। चंगे काम वास्ते तेरे कोल वक्त नहीं है। हुण असी जदों ऐसे बुढ़े हो जाते हैं ना, उन्हों गुरु पातशाह कहते हैं कबीर बेड़ा जरा बेड़ा जरा फूटे छेक हजार फूटे छेक हजार हरूले हरूले तिर गए, हरूले हरूले तिर गए। डूबे जिन सिर पार, डूबे जिन सिर पार, कबीर बेड़ा जरा बेड़ा जरा बेड़ा जरा हो गया। सोचनी दा ढंग खराब हो गया। कबीर मारी मरो कुसक की केले निकट जो बेर, वो झूला वो चीरिए साकत संग ना है। मेरा केले दा पत्ता कंडिया ने भैड़े ख्यालों ने छिल के रख दिता। मेरा बुढ़ापा आ गया, बेड़ा जर्जरा हो गया। फूटे 6000 मेरे शरीर के 10 द्वारे हैं इनसे और एक एक रोम से। मीन्स मेरा सारा सुरत मत बुद्ध सारी मेमोरी एवरीथिंग डिस्टॉर्टेड हो गई, वॉइसनेस हो गई, नेगेटिव्स हो गए। फूटे 6000। हुण मेरा टाइटैनिक डुबेगा ही ना। उस टाइटैनिक इतना एक छेद होया सी, मेरे फूटे 6000। लेकिन सियाणे हरूले हरूले तिर गए डूबे जिन सिर पार। जो इन्हां छेदां दे नाल जींदे रहंदे ने और इन्हां नूं पैचअप नहीं करते ने, वो डुब जाते हैं। पर सियाणे अपने छेदां नूं पैचअप करके अपने अवगुणा नूं संभाल के ठीक ठीक कर करके आस्ता आस्ता अपने बेड़े नूं पार ले जाते हैं। जिहड़े बेड़े नूं पार ले जा सकते हैं वो जवान रहिंदे ने, वो जवान होंदे ने। सोच नहीं दे उन्होंने कहते हैं गुरमुख बुढ़े कदे नाई। सो हुण फरीद जी कहते हैं मन की मत नाल शरीरक तल ते जीवना, एजिंग वर्सिस डाइंग, डाई क्राइंग एवरीथिंग। शरीरक बुढ़ा प्रतीक है, बट जदों असी सच के मार्ग ते टुरदे नहीं हाँ, मन की मत दे अध्यास के सैल्फिश कारण मार्ग ते टुर नहीं पाते हाँ। सच के मार्ग ते टुरन वेले दुबदा हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है। उन्होंने सिर कंप्यो पग डगमगे कहते हैं। दे अध्यासी हो जाते हैं, मन की मत वाले बन जाते हैं, तृष्णालु हो जाते हैं और सिट्टा की निकलता है, डेथ तो डर लगता है, चिंता सताती है, फिक्र सताता है। लेकिन निम्रता वाली जिखे बन जाइए,
फरीद जी कहते हैं बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी दे। इस तो बाद कहते हैं जे 100 वरिया जीवना, अगे कहते हैं पी तन होसी खे, इस शरीर ने खे हो जाना है, लेकिन मनु खे केड़ी समझनी है? नम्रता वाली। नम्रता वाली की होती है? हो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। तू नम्रता सीख। तू हमेशा दूजिया नू रॉन्ग करार नहीं करना, तू हमेशा दूजिया नू करैक्ट नहीं करना, तू हमेशा अपने आप नू सियाना नहीं समझना। तू पता की सीख? कीड़ी वाली नम्रता। हो सबन की रेणुका, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो जाए वाली गल बन जाएगी, पर हो सबन की रेणुका वाली खे बनना, शरीर ने तो खत्म हो ही जाना है। लेकिन नम्रता वाली खे बदले होरना उत्ते असी की करते हैं। फिर एक जगह कबीर साहब कहते हैं, कबीर रोड़ा होए रू बाट का तज मन का अपमान, ऐसा कोई दास हो ताई मिले भगवान। तू रोड़ा हो जा, रोड़ा होए रू बाट का, रास्ते का पत्थर हो जा, तज मन का अभिमान। पर कहते हैं रोड़ा हुआ तो क्या पिया, पंथी को दुख दे। लोग आते जाते हैं उनको ठोकर लगती है, और नहीं यार नहीं, रोड़ा को इनवैलिड करो। रोड़ा हुआ तो क्या पिया, पंथी को दुख दे। हर जन ऐसे चाहिए जो तरणी में खे। रोड़ा ऊंचा होता है, चल तू ऐसे हो जा जैसे धरती के ऊपर मिट्टी होती है। पर कहते नहीं, खे हुई तो क्या पिया, जो उड़ लागे अंग। हम लोगों के अंगों पे लग जाते हैं, आंखों में पड़ जाते हैं, नाक में पड़ जाते हैं, सारे कपड़े गंदे कर देते हैं जदों वैसे वाली मिट्टी बनते हैं। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ खे ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ खे हुई तो क्या पिया, जो उड़ लग गए अंग। हर जन ऐसा ही चाहिए जो पानी सर्बांग। अब पानी तो उड़ता नहीं है, तो कबीर साहब कहते हैं नहीं, पानी हुआ तो क्या पिया, शीरत आता होए, कभी तू गर्म होता है कभी ठंडा होता है, पानी नहीं इनवैलिड करते हैं। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हारी होए, तू रब वर्गा हो जा ना। जे तू सीखना है तो नम्रता वाला प्रतीक सीख। 100 वरियां का प्रतीक है लंबी उम्र, तृष्णालु उम्र, तृष्णाले तृष्णा विरले की बूझी रे, तेरी तृष्णा कदे नहीं बुझेगी, तू रज के नहीं जी सकेगा। जे तन आखिर खे होना ही है तो एडवाइजेबल है निम्रता वाली खे ले ले। पहला मरण कबूल, जीवन की छास। तू अपनी सोचनी वालों पहला मर जा। तेरी सोचनी की है नैगेटिव, नैगेटिव सोचनी की होती है बुढ़ापन, नैगेटिव सोचनी की होती है 4 गवाया हट के 4 गवाया सम, नैगेटिव सोचनी की होती है भैड़े ख्याल, पॉइजनस ख्याल मिठे लगते ने। वंस रियल रेणुका हो जाएगा तो कंबन वाली दे ठीक हो जाएगी, कन्फ्यूज्ड माइंड ठीक हो जाएगा, तू जिंदगी विच मिठास पैदा कर सकेगा। ओनू फरीद जी कहते ने, देख फरीदा जोतिया, देख फरीदा जोतिया, शक्कर होई विस, साईं बाजों आपने वेदन कही है इस। फरीद जी कहते हैं जो सच मिल जाता है ना, फिर असी बुढ़े नहीं रहते, फिर सानू सदा जवानी का अमृत प्राप्त हो जाता है, क्योंकि साडा थॉट प्रोसैस कुड़ियार तो सचियार हो गया, मेलाइन बिगाइलिंग थॉट्स तो छुट गया। देख फरीदा जोतिया, शक्कर हुई विस, मेरे जीवन जेड़ा पॉइजनस जहरीलापन सी वो शक्कर वांगू मिठा हो गया। साई बाजो अपने वेदन कही तिस, हुण तू अपनी चंगियाई दे गुण ना गाया कर, लोगों को लेबल लगा के फट्टा लगा के मैं बड़ा शरीफ हाँ, मैं बड़ा ईमानदार है, ए ना क्या कर, मनु बड़ा धर्म आ गया ना क्या कर, तीर्थ बरतर दान कर मन में धरे गुमान, ए गुमान ना करया कर, नम्रता विच रहा कर। गुमान करना भी अज के टॉपिक बुढ़ापा है। धर्म दे कर्म कांड दिखाना भी बुढ़ापा है। असी इसनू जदों वरना मन की मत नाल
ਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 42 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰਖਸੀ ਜੀਓ ਸ਼ਰੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੀਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਾਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਚੰਗਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਬਾਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਨੇਚਲ ਰਾਜ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੀਜੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰ 2 ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ 10-12 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ बॉडी ਨੂੰ डोनेट किया। बॉडी ਨੂੰ डोनेट करने फ़ायदा होता है कि जंगल की लकड़ी काट के संस्कार नहीं करना पड़ता, धरती पर कोई ज़मीन खरीद के वहाँ पर दबाना नहीं पड़ता। बॉडी डोनेट करने से डॉक्टर उससे रिसर्च करते हैं, आने वाले लोगों को उसका भला हो सकता है। बॉडी डोनेट करने से हमको कोई भी उनकी आत्मा को शांति नहीं दिलानी पड़ती, क्योंकि ये उनकी अपनी विल थी कि मेरी बॉडी को दूसरों के लिए मरने के बाद समर्पित कर दिया जाए। बॉडी डोनेट करने के नाल कोई कर्म कांड, कोई श्राद्ध, कोई वरीने कुछ नहीं करना पैंदा। सो दिस इज़ नॉट वरीना, दिस इज़ नॉट श्राद्ध, दिस इज़ जस्ट माता जी ने बीजी ने सानू जो कुछ चंगे गुण सिखाए, वो चंगे गुण असी लिविंग ट्रेजरी च अप्लाई करते हैं। कोशिश करते हैं कि असी होर भी संगतां दी सेवा कर सकीए। डिस्पेंसरी वास्ते तुसी कंट्रीब्यूट करते हो, असी 350 के करीब मरीज़ों को दवाई दे पाते हैं। तुसी कंट्रीब्यूट करते हो तो असी 150 बच्चों को इत्थे मुखर्जी पार्क विच ट्यूशनस पढ़ा के उन्होंने पैरों पर खड़ा करने का उद्यम करते हैं। तुसी जे कंट्रीब्यूट करो तो असी हॉस्पिटल भी खोल सकांगे। तुसी जे साडे नाल कंट्रीब्यूट करो असी वधिया स्कूल कॉलेज खोल सकांगे। 97% कट ऑफ रेट तो साडी सब दी निजात हो सकती है, साडे बच्चों को नवा जीवन बन सकता है। जे तुसी सारे कंट्रीब्यूट करो रल के तो असी टुरदे फिरदे ओफो खोल के किसी भी कार्य कोई भी मम्मी पापा को असी दुखी होने तो बचा के उन्होंने सेवा कर सकते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।